Hello and a very warm welcome once again. Good morning, namaskar, adab. Thank you very much for being here with us. Nitin Gadkari ji, as always, a great pleasure to have you here with us. He's taken the pains to come only for this event, straight from the airport. So thank you very much for that as well. A full house here. And Gadkari ji, the topic is India at 100. So I will try and not ask you questions of the present and the past. One of your ambitions, Gadkari ji, as someone we describe here as the builder of modern India, uh, is your Kashmir to Kanyakumari highway. But again, I will not ask you about that. Try and tell our audience here, when India is 100 years as a republic, what will our road infrastructure look like? Actually, before end of 24, our national highway road infrastructure will be equal to the USA standard. So I am very much confident about it. For example, in Delhi, we have just working Delhi and out of Delhi part that we are working on the project of 65,000 crores. I've got the list of every project. And I am confident that we will complete all the projects. After that, from Delhi to Dehradun will be 2 hours, Delhi to Haridwar 1.5 hours, Delhi to Jaipur 2 hours, Delhi to Chandigarh 2.5 hours, Chandigarh to Manali presently take 7 to 8 hours, it will be 3 hours. Then Delhi to Amritsar 4 hours, Delhi to Katra 6 hours, Delhi to Srinagar 8 hours, Delhi to Mumbai 12 hours, then Chennai to Bangalore 2 hours, Bangalore to Mysore is already completed, is 1 hour. And in which we are developing the road infrastructure, particularly starting from Kashmir to Kanyakumari. Just you take it from Manali. Before that Atal Tunnel, from going to Rohtang Pass, it takes something 3.5 hours. Now it is 8 minutes. After coming with Atal Tunnel, we are constructing 5 tunnels and roads up to Ladakh and Leh. After Ladakh and Leh, we are constructing the big tunnel in Asia, 11 kilometer, that is to be Jojila. 70% work has completed. Then after that, Jhedmore tunnel is completed. We want to open it as early as possible now. Then it comes to Srinagar. Then Srinagar to Jammu, we are already constructing 18 tunnels, out of which 14 are completed. And before Katra, there is a highway, Delhi-Katra highway. It comes to Amritsar, Amritsar to Delhi, and then it comes to directly to Delhi-Mumbai Express Highway. And after Delhi-Mumbai, after it goes up to Surat. Then for South India, from North India to South India, you don't need to go to Pune or Mumbai. From Surat, it will start it going to Nasik, Nasik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, Solapur to Kurnool, and Kurnool se Trivandrum, Cochin, Hyderabad, Bangalore, Chennai, and Kanyakumari. So it starts from Kashmir to Kanyakumari, express highway, axis control, the link between the countries. Kashmir to Kanyakumari, the question that I want to ask you in a lighter note is, सर कुछ जमीन बची रहेगी, सब कुछ हाईवे, सुपर हाईवे, एक्सप्रेसवेज ही ले जाएगा पूरे कंट्री में? नहीं कहाँ उतना है, देश में 63 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है. आउट ऑफ इस एनएच अभी मैं जब मंत्री बना तो 92,000 किलोमीटर था, अभी 1,46,000 किलोमीटर है. तो ये अभी भी 1.5 लाख किलोमीटर और करने की आवश्यकता है. ट्रैफिक डेंसिटी इज गुड, इकोनॉमिक वाइबिलिटी इज गुड. Even we can work on BOT, on PPP mode, there is no problem. Sir, we will have a great spread of highways, great expressway network, and many times the statistics are mind-boggling. But will our highways be much safer? I ask you this because our highways, roads have one of the highest fatality rates. You yourself have tried a lot in the last 10 years, but 2 decades later, how safe will India's highways be? एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपने 100 इयर्स की बात की थी जी, मैं हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं. और अभी कल ही मेरे पास काफ़ी काम पूरा हुआ है, टाटा से प्रेजेंटेशन भी हुआ.
मैं दिल्ली से जयपुर और नागपुर के रिंग रोड को इलेक्ट्रिक केबल जैसे रेलवे की होती है वैसी बना रहा हूँ। अंडरग्राउंड? नो नो, ऊपर में। अच्छा। और 2 या 3 बसेस, ट्रॉली बसेस उसके ऊपर चलेंगी दिल्ली से जयपुर, और जयपुर से रिंग रोड पर घूमकर फिर वापस दिल्ली आएगी। और अभी नागपुर में भी उसको कर रहा हूँ। तो ये पहला पायलट प्रोजेक्ट है, और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली से जयपुर बीओटी में हो सकता है क्या। और फिर मेरी विजन ये है कि फिर ट्रक भी ऐसे बनेंगे जैसे रेलवे का इंजन होता है ना, ऊपर में लगकर केबल पे चलता है, तो 2-2, 3-3 ट्रक भी उसी पे चलेंगे। और लॉजिस्टिक कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Presently, our logistic cost is 14 to 16%. China, it is 9 to 10%. And European country, 12%. I am confident at end of 24, our logistic cost will be in single digit. It will come up to 9%. So we will be more competitive in international market for export, and that is going to be a great boost for our economy, and which is very important. And the second thing about road safety, जी. from last 9 years, I am trying my level best, but this is not a success story. We have every year 5 lakhs accidents, 1,50,000 deaths, and out of which 60% deaths belong to the age group of 18 to 34. It's very unfortunate. But there are 4-5 reasons are important. One is automobile engineering, and other is road engineering. We have taken a lot of steps regarding automobile engineering. Just 4 days before, we have launched star rating of international standard. So we will get the car with the international standard, there will be no problem. At the same time, there are road engineering, there was some black spots. We are already spending 40,000 crore for improvement of black spots. We are taking all preventive measures of international standards, from signage to marking. And even lot of things we are now making the road safety audit of the every road. For that reason, now we have prepared the syllabus, and we are taking the help from the IIT, Engineering College, Polytechnic College for making road safety audit. But the other important thing is regarding road accident is education, emergency, and enforcement. Regarding enforcement, we have already have the new Motor Vehicle Act. For that reason, we have increased the fines and all the things are there. Regarding education is very important. The behavior of the common man is the basic reason for the road accident. Sir, is it just the common man or is it also the rich man? Just hours ago, we have had a very horrific accident. Many cars, convoy, one of the biggest and safest, most expensive cars in the world, hitting a truck. Nothing happened. It was not the fault of the truck, from what we know as of news reports. Is it just an attitude that everyone has on our highways? I'm just telling you a simple example of Merit Express Highway just 20 days before. The wrong side, the school bus driver has taken his bus on wrong side, and there was SUVs there. There was a crash and 6 deaths. Now, first of all, the most important thing is there is no fear about the law and no respect for the law in the majority people's mind. And that is to be a big problem. Somewhere, you should not talk on the phone when you are driving car or the scooter. You should have helmet. If the red signal is there, you should stop there. You should, lane discipline is very important. This is a big country, but now the people are not, now it's a very unfortunate for us. Majority of the accidents, the reason is lane discipline. And that is one of the reasons that we want to implement the law. Now we have cameras, everything. New intelligent traffic system is with us. But presently, the situation is that still we are not up to the mark. That is to be a big problem. We are highest in the world in road accident. Somewhere, this is a issue where we need help from universities, education institutions, NGOs, media. We are making campaign. We want to change the mindset of the people about the rules of the road. And now we are starting competition in the schools. Now we want to train the school children because they are the citizen of the future. So these are the problems, but we are trying. But the fact is that
we are not very much satisfied about it. We are working on it. सर भारत चांद पे भी पहुंच गया है और जो आपने बात कही है काफ़ी चिंताजनक है क्योंकि चांद पे पहुंच गए बट यहाँ पे लेन डिसिप्लिन नहीं रख पा रहे हैं। गडकरी जी, वन ऑफ द आपको एक बात बताऊं, जी ये सब दिल्ली के लोग बैठे हैं। जी अब मेरा बोलने में थोड़ा मैं स्पष्ट हूँ, आप करो। इनको पूछो, आप क्या इतने बड़े बड़े बंगले बनाते हो, मर्सिडीज गाड़ी 2-2 4-4 रखते हो, तो घर के अंदर पार्किंग बनाते हो क्या? पूरी गाड़ी एक भी जैसे हाथ हमने नहीं रोड इनके पार्किंग के लिए बनाया, पूरे लाइन पे लगा के रख। अब ये बड़े लोग भी है, क्या क्या फर्क पड़ता है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बना? तो फिर सर इसका अर्थ ये हुआ कि सड़कें छोटी होनी चाहिए, जैसे बॉम्बे में तो सड़कें ही नहीं है, तो क्या उसी से सेफ्टी बढ़ेगी क्या? नहीं, देखो प्रॉब्लम है कि रोड के दोनों बाजू में डेवलपमेंट हुई। हम्म, अभी गोवा और केरल तो दो राज्य ऐसे हैं कि हमारे हाईवे के बाजू में ही डेवलपमेंट है। हमारी कॉस्ट इन किलोमीटर इन केरला 49 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर लैंड एक्विजिशन। हमारे केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, 25,000 करोड़ दिए और मुझे आए मिलने के लिए। बोले सर हाथ जोड़ता हूँ, अभी मेरे से नहीं हो सकता। तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, ये जो पार्किंग का प्रॉब्लम है, अभी पहले रोड की विड्थ कम, उसमें ये पार्किंग खड़ा होगा तो कैसे होगा? तो सर 25 साल बाद क्या होगा? ऐसे ये तो बहुत भयानक, बहुत डरावना एक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बन रहा है। गाड़ियां भी आ रही हैं, बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, बड़ी बड़ी हाई राइजेस बन रही हैं। जो बॉम्बे का हाल है, क्या वो पूरे देश का हाल होने वाला है? अभी मैं नागपुर में मैंने एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वहाँ एक 11 मंजिले में फूड प्लाजा बना रहा हूँ, पार्किंग और फूड प्लाजा। उसमें 1100 गाड़ियों का ऑटोमेटिक पार्किंग किया है। अब धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, पब्लिक प्लेसेस में पार्किंग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसकी जरूरत है। अभी मैं मनाली का देखने के लिए गया था, ये बहुत नुकसान हुआ। वहाँ पूरे मनाली में इतने पूरे लोग, जिधर देखो उधर गाड़ियाँ दिखती है। अब उसमें हाई राइज पार्किंग, ऑटोमेटिक पार्किंग करने पड़ेंगे। मैं अपने डिपार्टमेंट से बस पोर्ट, पार्किंग प्लाजा, हाँ उसके साथ कुछ कमर्शियल जोड़ना पड़ेगा, तो कोशिश कर रहा हूँ ये होगा। पर कभी ना कभी लोगों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता। लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। गडकरी जी, इन द लास्ट 10-12 minutes you have given us a vision of that how much we will have in terms of highways, but it's also clear that road safety will continue to be a bigger issue. I want to come to another aspect which is related to this great ambitious work that you are doing, which is costs. The government is bearing the cost, the NHAI is bearing the cost. You have said several times, और हमारे ही ग्रुप के मंचों पे आपने लगातार कहा है कि पैसे की कोई कमी नहीं है बनाने में. But consumer behavior also says that many people are not willing to pay those tolls, and they say that इतनी महंगी कर दी है सड़क पे यात्रा, 25 साल बाद तो इससे फिर 4-5 गुना हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज लिंक्ड इंक्रीज हो टोल में. आपके कार्यक्रम में बहुत पहले कह चुका हूँ। अब आपने ये 5 स्टार होटल में कार्यक्रम लिया तो कॉस्ट है उसकी। रामलीला का ऑप्शन था मैदान का, वहां भी बैठ जाते चाय पीते। देखिए सर, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अभी मुंबई पुणे के बीच में 9 घंटे लगते थे, अभी रोड में 2 घंटा होता है, तो 7 घंटे अगर गाड़ी कम चलती है तो पेट्रोल डीजल बचता नहीं है। यू हैव टू पे। अभी मुझे बताइए, आप दिल्ली से जयपुर अगर 2 घंटे में जाएंगे, अब 3.5-4 घंटे लगते हैं, आपका डीजल पेट्रोल नहीं बचेगा। और इसलिए अगर अच्छी सर्विसेज चाहिए तो अमेरिका में भी टोल है। अब मैं लाखों करोड़ के रोड बना रहा हूँ। और दूसरी बात, रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी तो मैंने तय किया है, मैं अच्छा हुआ आपके यहाँ ये बता रहा हूँ कि अब मैं गरीब लोगों के पैसे से रोड बनाना चाहता हूँ। मैंने अभी इनविट मॉडल में ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया था, साहब बैठे, तो 7 दिन का टाइम था और मैं पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ हमारा बॉन्ड इशू जो हम इनविट में कर रहे थे। तो मुझे फोन आया हमारे मेंबर फाइनेंस का कि साहब जल्दी आओ, इनकी आप पद्धत होती है वो घंटा बजाकर क्लोज करना होता है। मैं आया दौड़ते हुए गोवा से और मैंने क्लोज किया, क्योंकि हम लोग 8.05% इंटरेस्ट पर ईयर दे रहे एश्योर्ड। फिर मैंने उसमें सुधार किया कि ये ईयरली नहीं, मंथली अकाउंट में जमा करेंगे। अब मुझे बताओ बैंक में फिक्स डिपॉजिट का रेट क्या, और हमारा 8.05 विथ NHAI AAA रेटिंग। तो मैं अब छोटे लोगों से पैसे ले रहा हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं।
मैं आपको बताता हूँ, मैं तो आप तो पूछ भी नहीं सकते मुझे। मैं आज तक 10 साल हो रहे मेरे मंत्री पद में, मैं बोलता हूँ कितने लाखों करोड़ में मैं बात करता था। लोगों को पहले लगता था पॉलिटिशियन है, बोलते ही है। अब मैं आप जैसे लोगों को पूछता हूँ, मुझे बताओ कि आज तक 10 साल में मैंने बोला करोड़ों में कौन सा काम नहीं हुआ, मुझे बताओ। इसका कारण आई एम कॉन्फिडेंट, आई डोंट हैव मनी प्रॉब्लम। और आपको कल बताता हूँ, कल मेरे यहाँ अमेरिका से डेलीगेशन आया था पूरे इन्वेस्टर का। मैंने उनको चाय कॉफी पिलाया और मैंने बोला आप पूछने के पहले मैं थोड़ा कुछ बताऊं, आप गलत फहमी मत करना। मैंने बोला पहली बात, गवर्नमेंट गारंटी दूंगा नहीं। दूसरी बात, NHI के क्रेडिट पर पैसा देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, समय खराब मत करो। तीसरी बात, आपको पैसा देने में मैं अगर आपको चाहिए तो आप बोले उस बैंक में एस्क्रो अकाउंट खोल दूंगा। आपको रिटर्न्स ईयरली चाहिए, 3 मंथली चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए या डेली चाहिए, रोज पैसा जमा करूंगा, रोज इनकम मिलेगा। एस्क्रो अकाउंट में पहला राइट तुम्हारा। और ये चीजें मान्य होगी तो मेरे से डिस्कस करो, नहीं तो मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप चाय पानी करो, नमस्कार। तो उन्होंने पोहा खा के कुछ और बोला सर कि चले गए? नहीं, वो खुश हुए, क्योंकि क्या है कि सब होता है रामायण, और फिर आखिरी में सवाल आता है भारत सरकार की गारंटी मिलेगी क्या। वो मिलाते मिलाते मुझे साल भर लगता है। आई डोंट वेस्ट माय टाइम एंड आई डोंट वांट टू कन्विंस टू एवरीबडी कि ये कैसे है। मेरे क्रेडेंशियल्स पर देना है तो दो, नहीं तो देखो मेरा अभी टोल इनकम 44,000 करोड़ है। एट द एंड ऑफ 24 आवर टोल इनकम विल बी 1,40,000 करोड़, और मैं रोड मोनिटाइज कर रहा हूं, और मेरा कोई प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली नॉन वायबल नहीं है। मेरा पूरा प्रॉफिट का ही धंधा है। एब्सोल्युटली। एंड गडकरी जी, हमने भी पोहा खाया है घर में चाय के साथ, इसलिए मैं जानता हूँ कि उनको मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कैनेडियन फंड, पेंशन फंड अभी इनविट मॉडल में आए ना, पर वो आजकल क्या होता है कि जब फंड्स आते थे पहले तो बोलते गवर्नमेंट गारंटी, तो वो गवर्नमेंट गारंटी लेते लेते वो प्रोसीजर इतना बड़ा होता है कि उसमें रिजर्व बैंक और वो सब करके बहुत समय जाता है। तो हमारा AAA रेटिंग है भाई, देना है तो दो, नहीं तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं कोई। एब्सोल्युटली। एंड आई कैन टेल द ऑडियंस एंड आवर व्यूअर्स दैट इन इवन आपको एक बात बताता हूँ, 2 बैंकों के चेयरमैन का विवाद हुआ, नेशनलाइज बैंकों का। ये बोल रहा मेरे 25,000 करोड़ लो, वो बोल रहा मेरे, दोनों मुझे फोन कर रहे हैं सर हमारे पैसे लो। फिर मैंने धीरे से बोला वो इतना इंटरेस्ट कोट कर रहा, तुम 0.5 कम करो। I was going to say that in the first year of taking over, Gadkari ji cut through so much red tape in the bureaucracy, and I know he still does that. But Gadkari ji, the question that I have in the backdrop, as you know, you have yourself revealed and unveiled that edition of Business Today. This is the first time that Pradhan Mantri ji has given an interview on G20 in which he has spoken about so many things, and one of the things that I want you to reflect upon is the confidence that India has now, that it is not taking from the world, it wants to give to the world. 2 questions, sir. इतना कॉन्फिडेंस आप में आता कैसे है, आया कहाँ से कि इतना बड़ा विजन हम सड़कों का, परिवहन का बनाए? एंड सेकेंड, आपने अमेरिका और कनाडा का उदाहरण दिया, ये परिवर्तन भी कैसे आया है कि अब वो लोग आके हमसे बात करते हैं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसको प्रधानमंत्री जी ने हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। और आप तो बिजनेस के इसमें हो तो आप जानते हो कि इस देश में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट हुआ तो ग्रोथ भी बढ़ेगी और गरीबी दूर होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े प्रमाण पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्राथमिकता दी। आपको याद होगा कि मैं पहले शिपिंग मंत्री था, तो मेरा बजट था 700 करोड़ का। कैन यू बिलीव, मैंने जो सागरमाला प्रोजेक्ट तैयार किया था वो था 16 लाख करोड़ का। और आप लोग जरूर कुछ प्रोजेक्ट का आप एक स्टडी करिए कि 16 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट में 11 लाख करोड़ के काम पूरे हुए सागरमाला में, और जबकि हमारा केवल बजट था 700 करोड़ का।
और 6,000 करोड़ रुपए 12 मेजर पोर्ट को प्रॉफिट मिला। ये अभी एक मैंने मथुरा का मॉडल कहता हूँ, जो जरूर आप इसको स्टडी करिए, कि जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट है इसमें भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव है। तो मथुरा में 90 MLD जो स्लज थी, वही वाटर रिसोर्स मंत्री था, और हाइब्रिड एन्युटी में हमने टेंडर निकाला, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया, और मैंने एक ऐसा मॉडल तैयार किया कि वो शुद्ध पानी तैयार करेंगे, और वो इंडियन ऑयल जो बाजू में रिफाइनरी मथुरा की, उनने खरीदने की तैयारी बताई। मैंने उनको पूछा कि आप पैसा, पानी कितना लगता है, कितना पैसा देते हो? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार से डैम से पानी लेते 25 करोड़ देते हैं। उन्होंने बोला आप 20 करोड़ दो, 5 करोड़ आपके बच गए, और वो पूरा पानी रिफाइनरी यूज कर रही है, और 40% सरकार ने दिया, 60% इन्वेस्टर ने लाया, और पहली बार लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी PPP मॉडल सक्सेसफुल हुआ। तो मुझे लगता है अभी मेरे पास स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस है। मैं इसके आप सब इन्वेस्टर को प्रार्थना करता हूँ कि मुंबई में एक डीजल की बस चलती है, पर किलोमीटर कॉस्ट 115, और जब हम सब्सिडी दे रहे थे तब हमारे नॉन AC बस की कीमत आई 39 रुपीज़ पर किलोमीटर, और AC बस की आई 41 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब इलेक्ट्रिक बस जो है, जो लिथियम आयन की बस है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख है, वो बस अगर हम लाएंगे तो उसकी कीमत विदाउट सब्सिडी हमको 60 रुपीज़ पर किलोमीटर आएगी। और जो ट्रॉली बस है जो केबल पर चलाएंगे, तो उसकी कीमत जो है वो 60 लाख रुपए आएगी। तो कैपिटल कॉस्ट कम है और बिजली भी कम लगेगी। तो मैं अभी पावर मिनिस्टर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप NTPC से सस्ते में बिजली दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो मुझे कॉस्ट और कम होगी। तो मैं अभी एक, मेरे पास रूरल ट्रांसपोर्ट मेरे पास है, और अर्बन ट्रांसपोर्ट UD मिनिस्ट्री के पास है। तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के सब घाटे में है, वहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है गाड़ी में। हाँ, गाड़ियाँ खराब है। तो मैंने सबको कहा कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ी AC लगा दो, टिकट रेट 30% कम कर दो, ड्राइवर ऑपरेटर का और कंडक्टर कारपोरेशन का, और कंडक्टर भी नहीं, जो कार्ड होगा चढ़ते समय और उतरते समय कार्ड दिखाओ। देखो चोरी होती है डीजल में और टिकट में, दोनों निकाल दिए हमने। इलेक्ट्रिक की चोरी हो नहीं सकती, और जो कार्ड है वो लगाने से कंडक्टर जेब में पैसा, कार्ड मैंडेटरी है जैसे टेलीफोन का है। तो मैं आपको बताता हूँ, हर दिन एक्स्ट्रा अकाउंट खोल के एक बस 50,000 रुपये का डेली बिजनेस करेंगी, 250 किलोमीटर चलेगी, तो और बस वालों को 15,000 रुपये उसके लिए रख देंगे। बाकी के 35,000 में कंडक्टर, ड्राइवर, बाकी सब खर्चा होने के बाद भी 15-20 हज़ार प्रॉफिट होगा। तो इस देश में कम से कम 5 लाख इलेक्ट्रिक बसेस आज पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, जैसे दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू जयपुर, अभी दिल्ली टू शिमला इलेक्ट्रिक बस चल रही है, और एयर कंडीशन लग्जरी बस, और डीजल बस की तुलना में 30% रेट कम करके ये पूरा अर्बन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक पे आएगा। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजिनस है और कॉस्ट इफेक्टिव है, विन विन सिचुएशन है। लोगों के AC में जाएंगे, 30% टिकट रेट कम होगा, और जो जिसको इन्वेस्ट करेगा वो भी पैसा कमाएगा। तो ये ऐसी बहुत सी बातें हैं कि अनेक फील्ड में हम लोग ये काम कर सकते हैं। सर, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्यूचर, आई वांट टू आस्क यू, 25 साल बाद पेट्रोल डीजल बचेगा इंडिया में? गाड़ी पेट्रोल डीजल की सब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड होगा? दुनिया का क्या होगा मालूम नहीं, पर मैं 2004 से बात कर रहा हूँ, और मेरा ये एम्बिशन है, ये बहुत कठिन है, डिफिकल्ट है, पर असंभव नहीं है। इसके बारे में मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूँ। मेरा बस चल जाए तो 5 साल के अंदर इस देश से फॉसिल फ्यूल को खत्म कर देना। और ये दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, 40% पोल्यूशन दिल्ली का जो है वो पेट्रोल डीजल का, फॉसिल फ्यूल का है। खत्म कर देंगे यानी गाड़ी बैन हो जाएंगी पेट्रोल डीजल? नहीं जी, जरूरत ही नहीं है। आपके पास गाड़ी है पेट्रोल की, इलेक्ट्रिक की कार ले लो, आप 30,000 रुपये खर्चा कर रहे हो, आपका खर्चा 2,000 रुपये आएगा। तो मुझे जरूरत ही नहीं मार्केटिंग। बट इलेक्ट्रिक गाड़ी महंगी भी है। मैं आया हूँ अभी गाड़ी में, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, हाइड्रोजन की गाड़ी है मेरे पास। हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। और आपको बताता हूँ, पेट्रोल डीजल की तुलना में नो पोल्यूशन, इकोनॉमिक। अभी मैं 29 को टोयोटो की फ्लेक्स इंजन इनोवा लॉन्च कर रहा हूँ दिल्ली में। अब 100% इथेनॉल पर है। अब पेट्रोल का रेट है 120 रुपये, इथेनॉल का 60 रुपये, और वो कार 40% बिजली तैयार करेगी। टोयोटो के सब मॉडल आ रहे हैं इसमें, और 40% बिजली फ्री ऑफ चार्ज। तो पेट्रोल का रेट एवरेज
माइलेज को हिसाब में लगाते हुए 15 से 20 रुपए लीटर आएगा, तो मुझे क्या जरूरत है इनको कहने की और आपको कि ये ले करके। तो हाँ, एक ही केवल जो आपका प्रश्न है, शुरुआत में जब नंबर कम होगा तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा कॉस्ट कम हो गया। अभी जैसे लिथियम आयन बैटरी, इसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $115 पर किलोवाट पर आवर आई। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर लिथियम आयन बैटरी की कीमत ये $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी। तो मैं आपको बता दूं, पेट्रोल और डीजल की कार की कीमत सेम होगी और इसके कारण लोग इलेक्ट्रिक कार, हाइड्रोजन कार यूज करेंगे। आपको और एक अच्छी बात बताता हूं, मैं जब मंत्री बना तब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी उसका टर्नओवर 7.5 लाख था, आज हमारा टर्नओवर 9.5 लाख करोड़ है। और दिस इज द इंडस्ट्री जिसने सबसे ज्यादा जीएसटी भारत सरकार को और राज्य सरकार को दिया है। और आज अभी ये इंडस्ट्री 9.5 लाख करोड़ की है। जब मैं मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे, आज हम 3रे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, 3रे नंबर पर अभी जापान था। हमने जापान को पीछे डालकर हम 3रे नंबर पर आए, जापान 4थे नंबर पर है। और मैं आपको बताता हूं कि हमको 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनानी है। 5 साल के अंदर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम प्रगति और विकास की ओर दुनिया में आगे जाएंगे, इसका प्रूफ है कि हम 5 साल के अंदर 15 लाख करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड में हम पहले नंबर तक पहुंचने की स्थिति में आ रहे हैं। यही हर फील्ड में होगा। That's a very important point, Gadkari ji, and one of the clear-cut headlines that you are giving us is that petrol diesel vehicles will get phased out hopefully in 5 years. नहीं, ये एक बात याद रखिए, क्योंकि कभी कभी मीडिया वाले की फिर मेरे नाम पर अलग डाल देते, इसलिए क्लियर हो जाए। ये मेरा उद्दिष्ट है, ये मेरी इच्छा है और ये पूरा ही होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ट्राई करूंगा। आज तक मेरा 100% रिकॉर्ड ऐसा है जी, जो मैंने कहा वो हुआ है। ये भी होने के लिए इन सब की दुआएं मिल जाएगी तो हो जाएगा। एक आखिरी छोटा सा प्रश्न, पिछली बारी जब आए थे तो मैंने आपसे पूछा था कि टोल से एग्जेम्पशन बहुत लोगों को मिल रहा है, आपने कहा था कुछ चीजों पे बात की नहीं जा सकती, देयर आर थिंग्स व्हिच वन कैन नॉट टॉक अबाउट। सिंस देन हैव यू हैड एनी चांस टू एंश्योर दैट एवरीवन पेज टोल इन दिस कंट्री? सर, मैंने 10 साल में एक को भी कंसेशन नहीं दिया। सर, बड़े बड़े बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा है, वो पहले मेरे पास मांगे पत्रकारों को टोल में कंसेशन, फिर पत्रकार के बाद स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग आएगा, फिर कोई बोलेगा शेड्यूल कास्ट को दो, फिर बोले शेड्यूल ट्राइब को दो, फिर ओबीसी को दो, फिर सरकारी कर्मचारी को दो, सबको दो तो टोल क्या होगा? तो ये मैं पेंडोरा बॉक्स खोला ही नहीं। मैं साफ बोल रहा हूँ, कोई कंसेशन मिलेगा नहीं। मैं आपकी बचत करके दूंगा, आपका समय बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा, और इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। पर एक बात आपको बताता हूँ, हमने अभी फास्टैग शुरू किया, हमारा 98.6% फास्टैग पेनिट्रेट हुआ। तो जो 78 सेकंड लगते थे वो अब 23 सेकंड पे आए। और 3 महीने के अंदर मैं सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहा हूं, जिसमें आपको कोई अटकाएगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। आप जहां से एंट्री करोगे वहां से आपके नंबर प्लेट और फास्टैग का फोटो निकल जाएगा, जहां से बाहर जाओगे वहां से निकल जाएगा, और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा माइनस हो जाएगा। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम आपके पास आएंगे नहीं। और बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी, कहीं रुकने की जरूरत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रुकेगा। गडकरी जी, मैं और नहीं पूछना चाहता क्योंकि और कहां से पैसा निकलेगा उसकी बात भी हो सकती है। आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नितिन गडकरी, द बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। थैंक यू।